وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی، سرمایہ کاری اور عسکری تعاون سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور ٹاسک فورس کے سربراہ بھی ملے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدل رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مدینہ منورہ پہنچ گئے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے اور نوافل ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، سعودی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ اہم ملاقات میں شریک تھے۔ پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، اقتصادی تعاون کو وسعت دینے اور خطے میں استحکام کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ اس موقع پر دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے عالمی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور ٹاسک فورس کے سربراہ ملے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن، سرمایہ کار پالیسیوں کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا مضبوط دو طرفہ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدل رہے ہیں۔ سعودی وزیر نے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سرمایہ کاری منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مزید تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم، پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کے ہوش ربا انکشافات۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے۔ جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں سے دوران تفتیش جے آئی ٹی نے اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے۔ یہ مواد پی ٹی آئی قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں پی ٹی آئی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم میں پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کے حوالے سے بڑے انکشافات۔ پی ٹی آئی کے افراد کے خلاف تحقیقات میں اشتعال انگیز مواد اکٹھا کر لیا گیا جو ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کے ثبوت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ان ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی سینٹرل میڈیا ڈویژن اور سوشل میڈیا ٹیم کی کارروائیاں رضاکار فورس کے ذریعے نہیں کی گئیں، بلکہ یہ تمام اقدامات مخصوص منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں۔ اس پروپیگنڈا مہم کے پیچھے داخلی اور آف شور اکاؤنٹس کا ہاتھ تھا اور اس کی مالی اعانت غیر ملکی لابیز اور پی ٹی آئی کی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ مل کر اس پروپیگنڈا مہم کو کنٹرول بھی کر رہی ہیں۔ جے آئی ٹی نے اس سلسلے میں قانونی اور انتظامی کارروائیوں کی سفارش کی ہے اور مفرور یا غیر حاضر افراد کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ جے آئی ٹی جو کہ الیکٹرانک جرائم کے ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دی گئی تھی، پی ٹی آئی کے افراد سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک ہفتے میں جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ ہتھیار اٹھانے والوں سے بات ہتھیاروں سے ہوتی ہے۔ نیا آپریشن شروع ہو رہا ہے، نیا آپریشن نہیں شروع ہو رہا اور نہ نئے آپریشن کی بات ہوئی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اس پر عمل ہوگا اور کروایا جائے گا۔ جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوں ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، ہتھیار اٹھانے والوں سے بات ہتھیاروں سے ہی ہو سکتی ہے۔ 1 جنوری سے مارچ تک 16 مارچ تک جو فگرز ہیں، 1141 دہشت گردی کے کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بلیک آؤٹ کر کے حکومت پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ضروری ہے آئین کی حکمرانی کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اپوزیشن ایک بات پر متفق ہے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد اپوزیشن کا اتحاد پوری طرح سامنے آئے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت اپنے رویوں سے پورے ملک کو ڈبو رہی ہے۔ کوئی بھی حکومت عوام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ موجودہ حکمرانوں پر تو دنیا بھی اعتماد نہیں کرتی۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। क्या मुल्क के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए? सहाफ़ी का ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर से सवाल। वज़ीर दिफा ने जवाब दिया, ज़रूर इकट्ठे होंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तफाक होना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकआउट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डंके की चोट पर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुझ पर ट्रक का शीशा तोड़कर बिस्किट चोरी करने का मुकदमा कायम किया गया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने विफाक और मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कि ये पूरी पार्लियामान की आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है जॉइंट सेटिंग के हवाले से बात हो, जहाँ पे सारे बात कर सकते। और वहाँ पे हमारे वज़ीर आला साहब भी थे। यहाँ पे KPK गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है और यहाँ पे ना ही हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का नई बात मीडिया नेटवर्क का दौरा। इदारे की गैर जानिबदाराना सहाफ़ती अक़दार को सराहा। कहा, दहशतगर्दी से जितना नुकसान पीपल्स पार्टी का हुआ उतना किसी जमात का नहीं हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एक सियासी जमात का ना आना अच्छा तासुर नहीं। गवर्नर हाउस को आम आवाम के लिए खोल दिया है। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ उमर दराज से, जो इस वक्त गवर्नर पंजाब के साथ मौजूद हैं। जी उमर दराज। आज बिल्कुल बात की जाए अगर मुल्क की हालात के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो काफ़ी दरपेश रहे हैं, लेकिन पाक फ़ौज के की जानिब से भरपूर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, जिससे दहशतगर्दी लहर को कंट्रोल किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो एक लहर आई हुई है और हालात काफ़ी परेशान कुन है हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए। बलूचिस्तान के हवाले से भी और KP के हवाले से भी। उसी पे फिर इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई, इजलास भी हुआ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय की गई। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि पूरी कौम इस दहशतगर्दी के मामले में इकट्ठी हो और इकट्ठी है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि गवर्नर पंजाब का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो सबसे ज़्यादा विक्टिम हुई है दहशतगर्दी की। इनका कहना है कि हमने अपनी पार्टी से हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने अपना खून इस मुल्क के लिए दिया है। इनका ये कहना है कि न्यूज़ जो है वो बेबाक सहाफ़त का अलमदार है और हमेशा गैर जानिबदाराना सहाफ़त की है और आला मुकाम रखता है सहाफ़त की दुनिया में। जी वेलकम बैक। मिफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद आदाद शुमार पेश करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ने आवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब दी। नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी की वजह से 4000 मेगावाट से ज़ायद सोलर हासिल करने वाली बिजली सिस्टम में दाखिल हो चुकी है। वफाकी वज़ीर के मुताबिक मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हेल्थ एंड पॉपुलेशन दफ्तर आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने महकमे की 9 तामीर शुदा इमारत का दौरा किया और मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना भी किया। DG हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सूबाई वज़ीर को महकमे की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मरीम नवाज की हिदायत पर वसाइल बचाने और आबादी पर काबू पाने के लिए 5 साला मनसूबा तरतीब दिया जाएगा। 5 साला मनसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए सालाना अहदाफ में मरहलावार तकसीम किया जाएगा। आबादी की अफजाइश पर काबू पाकर समाजी और इक्तिसादी तरक्की की शरह को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। वसाइल और आबादी के तनासुब को बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। लाहौर के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेडीज़ एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल फोर्स को मैदान में उतार दिया गया। किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और पेट्रोलिंग की जाती है, बता रही हैं शाहिद रिजवी इस रिपोर्ट में। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खवातीन एहलकार, वो भी साइकिलों पर सवार, डॉल्फिन एहलकार की वर्दी जेबे तन किए ये लेडी एहलकार अपने साथी एहलकारों के साथ बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स पर साइकिल पर गश्त करेंगी।
SP डॉल्फिन शामिर खालिद कहते हैं 15 रमजान के बाद बाजारों में रश बढ़ जाता है। खवातीन को हिरासत करने के वाकयात ना हो इसलिए फोर्स को मैदान में उतारा गया है। हमारा साइकिलिंग स्क्वाड तश्कील दिया गया है जो लाहौर शहर की मेन मार्केट्स और पार्क्स में डिप्लॉयड हैं। इसमें हर हमारी एक टीम में 2 खवातीन एहलकार और 2 मेल एहलकार इसमें शामिल हैं। ये इनका प्राइमरी फोकस हरासमेंट के इंसिडेंट्स और पिक पॉकेटिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, स्नैचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, चाइल्ड लॉस्ट की रिपोर्ट होती है। इन तमाम इंसिडेंट्स पे हमारी जो साइकिलिंग स्क्वाड की टीम्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। साइकिल पर पेट्रोलिंग करती खवातीन एहलकारों को देखकर बाजार में आई खवातीन भी मुतासिर हैं, जबकि इनके तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर इन एहलकारों को साइकिल के साथ पिस्टल, हथकड़ी, टार्च और वायरलेस सेट दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं हरासमेंट के हवाले से, बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं और उसके बाद चोरी वगैरह के केसेस होते हैं। तो अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमें मार्केट में इसीलिए तैनात किया गया कि आप फ़ौरन से उसको रिस्पॉन्ड करें ताकि उस शहरियों को जो भी परेशानी है उसके अजाला हो सके। मार्केट में जब हम लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कभी कभार ये होता है कि हमारे साथ मर्द हजरात तो नहीं होते हैं, तो हमें ख़ुद भी अकेला आना पड़ जाता है। तो कभी कभार ये होता है कि हमें किसी से कुछ पूछना पड़ जाए या ज़्यादा हम रश वाली जगह पर आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं, या हमें किसी से कोई रास्ता पूछना पड़ जाए तो हमें ये होता है कि मर्द हैं उन्हीं से पूछ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमें जो है वो लेडीज़ नज़र आई, लेडीज़ वर्कर नज़र आए जिनसे हम बआसानी जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन और बच्चियों का कहना है फ्रेंडली पुलिस यूनिट की खवातीन एहलकारों की तैनाती उनके लिए एहसन इक़दाम है। शॉपिंग के दौरान वो खुद को सिक्योर महसूस करती हैं। कैमरामैन अफजल के साथ शाहिद रिजवी, नियो न्यूज़, लाहौर। कराची में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने में आई। कविता नामी हिंदू खातून ने अपने हाथ से बनाई हुई इफ्तार मुसलमानों में तकसीम की। इफ्तार बॉक्स की खासियत ये थी कि इंडियन डिश वड़ा पाव भी रखी गई थी। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सोहेल। ये है कराची की हिंदू खातून कविता दीदी जो फेरियल हॉल कराची में दिल्ली की मशहूर डिश वड़ा पाव और पाव भाजी का स्टॉल लगाती हैं। कविता दीदी की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सोच ने सबको कर दिया हैरान। कविता दीदी ने रमजानुल मुबारक के मौके पर रोजेदारों को अफ्तार कराने में सबको पीछे छोड़ दिया। अपने हाथों से समोसे, रोल, पकोड़े तलकर डिब्बे में सजाए। भारतीय शहर दिल्ली की मशहूर डिश वड़ा पाव भी अफ्तार के मेन्यू में शामिल किया। कविता दीदी कहती हैं पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान हिंदुओं के हर त्योहार पर ना सिर्फ मुबारकबाद देते हैं बल्कि शिरकत करके हमें हौसला बख्शते हैं। किसी का रोज़ा खुला रहे हो तो एक सवाब भी होता है, हमारे में भी ये सवाब भी होता है कि किसी ने रोज़ा रखा है उसको फास्ट ओपन करवाना, तो अच्छी फीलिंग होती है, अच्छा लगता है। कविता दीदी के रिश्तेदार भी इस काम में उनके साथ रहे। कहते हैं मुसलमानों को रोजा अफ्तार कराना हमारे नजदीक सवाब का काम है। किसी को खिलाना बहुत अच्छा काम है, तो मतलब एक सवाब का भी काम है। ऊपर से अगर रोजेदारों की अगर हम इफ्तार करवा लेते हैं वो ज़्यादा सवाब का काम है। कविता दीदी ने फेरियल हॉल में अफ्तार के डिब्बे पैक कराकर अपनी मुस्लिम दोस्त के हमरा मिस्री शाह में मुस्तहिक रोजेदारों में तकसीम किए। कविता दीदी के इस अमल को मुसलमानों ने बेहद सराहा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की जानिब से स्टूडेंट्स और फैकल्टी के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स, असातिज़ा और फैकल्टी समेत चेयरपर्सन ISLB आबिदा अब्दुल खालिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की जानिब से स्टूडेंट और फैकल्टी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन ISLB आबिदा अब्दुल खालिक का कहना था, जिस तरह सुपीरियर ग्रुप और ISLB पूरा साल बच्चों और असातिज़ा के लिए इवेंट का एहतमाम करता है, वैसे ही रमजान में भी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है। हर साल डिफरेंट गेट टुगेदर्स करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान का महीने में अफ्तारी का जो एहतमाम किया जाता है वो ये कि बच्चों में जो दीनी मालूमात और दीनी रुझान और उनकी दीनी जो सलाहियतें हैं उनको उभारने के लिए और वो तालीमात जो इस्लाम ने हमें दी हुई हैं उन पे अमल दरामद कराने के लिए ये स्पेशली है। साबिक प्रिंसिपल ISLB अरमान नसीम का कहना था, चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान के VN के मुताबिक स्टूडेंट्स को बेहतरीन तालीम के साथ तफरीह फराहम करना पहली तरजीह है। तारीख का तमाम भी इसी तरह गेट टुगेदर हो,
नेटवर्किंग हो और स्टूडेंट्स को मौका मिले कि वो भी आपस में बैठ सकें और रिलैक्स कर सकें और आपस में बातचीत कर सकें। इंटरनेशनल कंसल्टेंट गजाली अख्तर और प्रिंसिपल वापडा टाउन शाहिद रजा का कहना था कि ISLB ने नई और मुख्तलिफ फिजा कायम कर दी है जिसमें लॉ और बिजनेस की बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं। UK लेवल 3 की बात करें, इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में और ख़ासकर लाहौर में ISLB ने जो एक डिफरेंट फ़िज़ा कायम की है, ये इससे पहले यहाँ मौजूद नहीं थी। कि कैंपस इज़ डिफरेंट और उसके बाद फाइनल ईयर में अगर वो चाहें तो UK और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इनके पार्टनर इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ जाके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इस मौका पर स्टूडेंट्स का कहना था कि शानदार इफ्तार डिनर पर ISLB का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे और मैं इनकी डायरेक्टर ऑफ ISLB मैम आबदा का शुक्रिया अदा करती हूँ इतना अच्छा इफ्तार बुफे अरेंज करने के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं जिसमें उनको ग्रूमिंग का और डिफरेंट उनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स की। इनका मजीद कहना था कि उम्मीद है मुस्तकबिल में भी ISLB ऐसे इवेंट्स का एहतमाम करता रहेगा। कैमरामैन सोहेल अकरम के साथ तैयब बेग, न्यू न्यूज़ लाहौर। जलालपुर भटिया में फलाही इदारों और मुखय्यर हजरात की जानिब से जगह जगह इफ्तार डिनर का एहतमाम तो किया जाता है मगर सहरी के खाने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। फलाही तंजीम ने नई रिवायत डालते हुए फ्री सहरी पॉइंट का एहतमाम किया है। मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर भटिया में रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में फलाही अदारे और मुखीर हजरात की जानिब से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है मगर सहरी दस्तरखान का इंतजाम कहीं भी नजर नहीं आता। फलाही अदारे ने नई रवायत को बरकरार करते हुए फ्री सहरी दस्तरखान का एहतमाम कर दिया। फ्री सहरी पॉइंट पर दही, रोटी और पराठे के साथ सालन का रोजाना की बुनियाद पर मेन्यू तब्दील होता है। सहरी दस्तरखान के मुंतजमीन का कहना है कि न सिर्फ गरीबों के लिए बल्कि मुसाफिरों के लिए बिला तफरीक सहरी का एहतमाम किया जाता है। दस्तरखान लगाए जाते हैं कि जहां पर मजदूर और जो मुसाफिर लोग हैं वो आकर सहरी करते हैं। फ्री सहरी पॉइंट के एहतमाम पर मुकामी शहरियों का कहना है कि माह मुकद्दस में ऐसे फ्री पॉइंट की अशद जरूरत है ताकि गरीब लोग भी रमजानुल मुबारक की खुशियों में शरीक हो सकें। माशाल्लाह सभी मुसाफिर बिहाड़ी से आते हैं, आफसाबाद के लिए जाते हैं, इधर रोजा रखवाते हैं। माह मुकद्दस में साबे इस्ताद अफराद फ्री सहरी दस्तरखान का इंतजाम करके नेकियां समेटने के साथ साथ लोगों की खुशियों में भी शरीक होते दिखाई देते हैं। कैमरामैन गुलाम हुसैन भूटा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज़, जलालपुर भटिया। आगे बढ़ते बात करेंगे ईद शॉपिंग में खवातीन एक चीज़ चॉइस की छलनी से गुजारती हैं। सच धज की हर चीज़ की खरीदारी के बाद जूतों का इंतखाब अक्सर आखिर में किया जाता है। मज़ीद तफसीलात फाखिरा खलील की इस रिपोर्ट में। बात फैशन की हो या रवायत की तो खवातीन की नजर खुस्सों पर आकर रुक जाती है। खुस्सों में फैंसी काम से लेकर दबक, कोरे, कटवर्क, चिकनकारी, वेलवेट, गंदाना, मोती और नगीनों के साथ खुस्सों पर जामा व मकैश का काम भी बखूबी अंजाम दिया जाता है जिसकी बनावट इंतहाई खूबसूरत होती है। इन डिजाइन के अलावा खुस्सों में रंगारंग ट्रक आर्ट, चमड़े के सादा और डायनेमिक डिजाइन भी तेजी से मकबूल हो रहे हैं। खुस्सों पर मकबूल ट्रक आर्ट वर्क आजकल जदीद फैशन में भी शामिल है। खुस्सों की कीमतें दीगर सैंडल्स और स्लीपर्स के मुकाबले में कम और मुनासिब हैं। ईद के करीब आते ही दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। लेडीज जो है ना वो ज्यादा खुस्सा पसंद करती हैं। फैंसी खुस्से में तिल्ले वाला खुस्सा भी होता है और नगीने वाला खुस्सा भी होता है। जो नगीने वाले खुस्से होते हैं ना वो ज्यादा पसंद करते हैं। खवातीन कहती हैं ये फैशन के मुताबिक है और आरामदाह भी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। खुस्सा जो है ना ये लेडीज की पसंदीदा चीज है और खास तौर पे लॉन के सूटों के साथ बड़ी मैचिंग होती है इसकी। बहरहाल किसी भी चीज की कीमत में कितना ही इजाफा क्यों ना हो जाए, खवातीन हर मुमकिन कोशिश करके उसे खरीद ही लेती हैं और जब बात हो ईद के फैशन की तो फिर शौक का कोई मोल नहीं। जहां ईद पर रवायती और नए तर्ज के खुस्सों की मांग बढ़ जाती है, वहीं खवातीन ईद पर अपने कपड़ों के साथ मैचिंग खुस्से लेने के लिए मार्केट का रुख करती हैं। कैमरामैन सोहेल अकरम के साथ फाखरा खलील, न्यू न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम इस्लामपुरा में अवामुन्नास के लिए ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया जहाँ शहरियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। सहरी के दस्तरखान पर मुतअद्दिद रवायती पकवान मौजूद थे जिनसे शहरियों की तवाज़ो की गई। PP 173 के रिहायशियों के लिए मरकजी मुस्लिम लीग का बड़ा एहतमाम, हल्के के अवाम के लिए सहरी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने रमजानुल मुबारक में फलाही सरगर्मियों को मजीद बढ़ाने का अज़म भी किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर हाफिज तलहा सईद ने कहा, रमजान में गरीब तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लोगों में जो मुस्तहिक अफराद हैं उनमें सहरी का खाना तकसीम कर रहे हैं
یہ ایک بڑا یونیک اور ممتاز عمل ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کے PP 173 کے امیدوار حافظ راشد محمود کا کہنا تھا، ہم خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، رمضان میں عوام کی بھرپور مدد کریں گے۔ الحمدللہ 300 گرانوں کو صبح سحری دیتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ہماری گاڑیوں میں کھانا رکھا جاتا ہے، روٹیاں رکھی جاتی ہیں، ہمارے جو خدمت خلق کے کارکن ہیں وہ گھروں میں جا کے سحری تقسیم کرتے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے لاہور سمیت ملک بھر میں رمضان المبارک کے دوران فلاحی سرگرمیاں جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ کیمرہ مین واجد کے ساتھ چراغ بلوچ، نیو نیوز، لاہور۔ موسم بہار شروع ہوتے ہی ہر طرف پھول ہی پھول دکھائی دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر پھولوں کا بسیرا ہے۔ موسم بہار نے صادق آباد کی دھرتی کو بھی خوبصورت کر دیا ہے۔ محمد شعبان کے ساتھ وہیں چلتے ہیں۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھل گئے، خوشنما پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب ہر طرف پھولوں کی مہک ہو تو باغوں میں بھی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ اداس دلوں، اداس چہروں پر موسم بہار نے پھولوں کی سی تازگی پیدا کر دی۔ موسم بہار کے شروع ہوتے ہی ہر طرف رنگ برنگے پھول کھل جاتے ہیں، ان کی خوشبو روح کو بہت تازہ کر دیتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے ان کو پھولوں کو دیکھ کر۔ پھولوں کو دیکھتے ہیں تو بہت موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور کھلے ہوئے پھول دیکھ کے تو اسپیشلی ہمارا موڈ زیادہ فریش ہو جاتا ہے اور مجھے پھول بہت پسند ہے۔ صادق آباد میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور کوئل کی کوک بھی موسم کا مزاج دوبالا کرتی ہے۔ موسم بہار میں کھلنے والے یہ رنگ برنگے پھول جو نہ صرف ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ اپنی محصور کن خوشبو سے انسانی روح کو بھی تر و تازگی بخشتے ہیں۔ کیمرہ مین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبان، نیو صادق آباد۔ تندرستی ایک عظیم نعمت ہے، خداوندی ہے۔ ہمارے ارد گرد جسمانی معذوروں کی تعداد بے شمار ہے، لیکن آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے بڑے تجارتی مرکز تتا پانی کے نواحی علاقے میں صرف چند گھرانوں میں معذوروں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ تتا پانی سے چند کلومیٹر کی مسافت پر واقع بھابڑا ڈینگی کے نام سے منسوب علاقے میں 15 گھرانے آباد ہیں، جن میں سے کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس میں کوئی معذور فرد نہ ہو۔ بعض گھرانوں کے اندر متعدد افراد معذور ہیں۔ بستی کے مکینوں کے مطابق یہاں پیدا ہونے والے بچے عمر کے ایک مخصوص حصے 10 سے 12 سال کی عمر کو پہنچنے پر ایک عجیب بیماری کا شکار ہو کر معذور ہو جاتے ہیں۔ اب تک متعدد افراد زندگی کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ یہ متاثر افراد قدرت کی بڑی آزمائش کے ساتھ غربت کی وجہ سے بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ میرج کی وجہ سے جو ہوتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں، ان کو خود اور پھر ویل چیئر کا سہارا لینا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ پانی ایسا نہ وہ تریہ چوتھا کا روڈ نہیں نہ وہ بھی بورے کڈیا پیسے دی۔ علاقے کے مکین آج کے جدید دور میں صحت، سڑک، پانی وغیرہ کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ علاقے کے لیے پختہ سڑک کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔ معذوروں کے ورثاء اور دیگر اہل علاقہ نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اس علاقے پر توجہ دے، معذوروں کی بستی کے مکینوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ ساجد علی چودھری، نیو نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ ناظرین، نیو کے اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔